Welcome everyone. So finally we are in class 10. In class 10 we have two books in English. One is First Flight, which is the main book, and another one is Footprints Without Feet. In this video we will deal with the First Flight, which is the main book. Here you can see the contents. Look at this. At first there is the first chapter, A Letter to God, written by J.L. Fuentes. Here are some poems also written by Robert Frost, Dust of Snow and Fire and Ice. As we can see here, the second and third chapters. Second chapter is Nelson Mandela. Third one is Two Stories About Flying. There are two stories, His First Flight and Black Aeroplane. So likewise, here are other chapters. You can see we will deal with all those chapters. But at first our topic is A Letter to God, written by J.L. Fuentes. So in this chapter, at first if I am to tell you the theme of the story is a letter to God. The main theme is faith, greed and appreciation. The story is set in a Latin American country, and the protagonist's name is Lencho. Lencho, who is the protagonist of the story, he actually writes a letter to God, seeking help from the Almighty after discovering that his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm. Partially his wishes got fulfilled, but he is ungrateful. And at the end, and at the same time you may say him innocent also in the end, and he questions the honesty of the postmaster and the staff who actually helped him with the money in the name of the God. So firstly, the lesson demonstrates Lencho's faith in God. The story revolves around his faith. Secondly, we can say that he is innocent. He is greedy, it may sometimes feel, but actually he is very innocent. Thirdly, the lesson demonstrates also that sometimes charity might go unnoticed. That means one might not receive any recognition for one's kindness. So here is the section before you read. They say faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. That means here are some common sayings that faith can move mountains. If someone has faith in something, it can do miracle. Now the storyline here, as I have told you, that Lencho, he is a farmer. He writes a letter to God when his crops are ruined. So Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. लेंचो एक फार्मर है जिसने गॉड को एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है जब उसका जो क्रॉप्स है वो पूरी तरह से ruined हो चुका है. आस्किंग फॉर 100 pesos. इसका मतलब है कि लेंचो ने गॉड को एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखा और डिमांड किया कि उसको 100 पेसोस एक्चुअली एक करेंसी है जो कि लैटिन अमेरिका कंट्रीज लाइक फिलीपींस, उरुग्वे, मेक्सिको यहाँ में यूज़ होता है. Does Lencho's letter reach God? This is the question. Actually, this is the question that we are to discover. Does God send him the money? Actually, he got the money, but as we all can quite well understand that God hasn't sent him the money.
Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before we begin to read it. Okay, so we have already done this. I have already told you the outline of the story, the theme. So let's start the story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है. क्रेस्ट का मतलब है टॉप ऑफ ए हिल. मैं एक काम करूँगा, जब भी मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा हिंदी में, उससे पहले मैं एक बार इंग्लिश में भी इसका एक्सप्लेनेशन आपको कर दूँगा. इससे होगा क्या, इंग्लिश भी आपका रेडी हो जाएगा और हिंदी में भी आपको मतलब समझ आ जाएगा. So the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इसका मतलब है कि अगर कोई ऊंचाई से देखे तो उसको सिर्फ दिखेगा एक रिवर, एक नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एकदम हरा भरा खेती, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसको देख के ही समझ में आ जाता है कि अच्छी खेती बाड़ी यहाँ पे हो सकता है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर. लेकिन एक चीज की जो कमी थी वो था डाउनपोर, मतलब बारिश की कमी थी. और एट लीस्ट ए शावर. अगर डाउनपोर का मतलब है हेवी रेनफॉल, अगर हेवी रेनफॉल भी ना हुआ, एटलीस्ट ए शावर, थोड़ा सा बारिश भी हो जाए तो भी चलेगा. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So Lencho had nothing to do except looking at the sky. इसका मतलब है लेंचो और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक ही काम वो कर रहा था. क्या? वो देख रहा था कि आसमान से शायद कुछ इशारा मिल जाए बारिश का. Now we are really going to get some water, woman. So this is the speech of Lencho, probably asking his wife that they might get some rain water. लेंचो ने उनकी जो वाइफ है उन्हीं को एड्रेस करके ये बोला है कि शायद अभी रेन हो सकता है, बारिश हो सकता है. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. वुमेन भी, उनके जो वाइफ है, उन्होंने भी ऐसा ही समझा कि हाँ हो सकता है अगर गॉड चाहे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा फैमिली जो है वो गॉड फियरिंग है, रिलीजियस है, और उनका एक फेथ है गॉड में. यस, गॉड विलिंग, दैट मीन्स इफ गॉड विशेस इट कैन. द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. आप समझ सकते हो इसका मतलब कि जो ओल्डर बॉयज़ हैं, जो बिगर बॉयज़ हैं, वो काम कर रहे थे फील्ड में, खेत में, और जो छोटे बच्चे हैं वो पास ही के जो कंपाउंड है वहाँ पे खेल रहे थे. और वो तब तक नहीं आए जब तक उनके माँ उनको नहीं बुलाते. कम फॉर डिनर. सो his wife, Lencho's wife, asked her sons for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. जैसा कि लेंचो ने एंटिसिपेटेड किया था, जैसा कि लेंचो ने सोचा था कि अब शायद बारिश हो सकता है, तो ऐसा ही हुआ. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. बड़े बड़े बूंदे गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. अगर नॉर्थ ईस्ट से में देखा जाए तो बड़े बड़े क्लाउड्स, जिसको देखकर कोई समझेगा कि ये कोई पर्वत होगा, इतना बड़ा बड़ा क्लाउड्स
अप्रोचिंग हो रहा था, मतलब आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और यहाँ पे लेंचो क्या कर रहा था, वो ऐसे ही बाहर निकला। क्यों? क्योंकि वो उसको अच्छा लग रहा था, जो प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उसे ये महसूस हो रहा था कि हाँ, उसके शरीर में बारिश हो रहा है, उसके ऊपर जो बारिश की बूंदे गिर रहा है, इससे उसको अच्छा लग रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो घर लौट के आया, उन्होंने बताया, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। सो वो इतना खुश था क्योंकि वो उसको मालूम था कि ये बारिश की वजह से उसका जो खेती बाड़ी है वो अच्छे से हो सकता है, और जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। सो इसीलिए उन्होंने बताया कि ये रेन ड्रॉप्स है, ये लाइक न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5s। सो वो इतना खुश था कि वो कंपेयर करने लगा, जो बड़े बड़े बूंदे हैं बारिश के, वो 10 सेंट पीसेस उसका वैल्यू होता है, जैसा कि पेसोस बताया गया था। मैंने आपको बताया कि लैटिन अमेरिकन का जो एक करेंसी होता है, एक मॉनेटरी यूनिट होता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का, तो ये 10 सेंट पीसेस जो बड़ा वाला ड्रॉप है, और जो छोटा वाला है वो लिटिल वंस आर लाइक 5s। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. So वो काफ़ी खुश था, सेटिस्फाइड था, संतुष्ट था अपने आप में। एंड ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। वो देखने लगा कि उसका जो एकदम से कॉर्न फील्ड है, उसके फ्लावर्स के समेत वो देखने लगा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और चारों ओर से बारिश ही हो रहा था। ड्रैप्ड इन मीन्स यू कैन सी हियर covered with. But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन उसकी जो खुशहाली थी वो थोड़ी देर में ही बदल गई, क्योंकि सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग विंड आने लगा। along with the rain very large hailstones जो ओले है, ओले बरसने लगे। began to fall. So अभी रेन के साथ साथ जो लार्ज हेलस्टोन्स का मतलब ओले होता है, जो बड़े बड़े फ्रोजन बर्फ गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और इसको क्या बोला जा सकता है, ये एकदम से नए सिल्वर के कॉइन्स के जैसा दिखने लगा। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो बच्चे थे वो अपने आप को रेन में एक्सपोज करने लगे, मतलब वो बाहर आ गए और इधर उधर दौड़ने लगे, क्योंकि उनको वो फ्रोजन पर्ल्स, मतलब जो हेलस्टोन्स थे, जो ओले थे, वो कलेक्ट करने थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, बट लेंचो वॉज नॉट हैप्पी। वाई? लेंचो समझ गया कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। I hope it passes quickly. Lencho said that it might pass quickly. वो समझ में आ रहा था उसको कि ये कुछ गलत हो सकता है। It did not pass quickly. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये quickly नहीं चला गया। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. इसका मतलब 1 घंटे तक चला ये हेलस्टोन्स का बरसना, बहुत देर तक चला, और पूरे और गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, पूरा वैली में, पूरा जो गार्डन है, पूरा जो खेती बाड़ी है, सब में ये बरसता रहा 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और उसका जो फील्ड था वो पूरा सफ़ेद हो गया। लग रहा था जैसे कि कोई सॉल्ट उसमें मतलब बिछा दिया हो, पूरे खेत में जैसे कि सॉल्ट है,
एक्चुअली ये क्या था? एक्चुअली इसमें हेल स्टोन्स था. नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. कोई भी पेड़ में एक भी पत्ता नहीं दिख रहा था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ. उसका जो कॉर्न था वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया था. द फ्लावर्स वेर गन फ्रॉम द प्लांट्स. पेड़ में एक भी फ्लावर नहीं था. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. कुछ ही पल पहले लेंचो जो बहुत खुश हो रहा था बारिश के आने से, वो अभी बहुत दुखी हो चुका है. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब पूरा ये जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका, जो स्टॉर्म जो हुआ था वो चला गया, तब वो उसके जो फील्ड था उसके मिडिल में खड़ा होके उसके जो सन्स थे उसको बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. अगर खेत में कोई लोकस्ट आ जाता. लोकस्ट कौन है? लोकस्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई विथ बिग स्वॉम्स ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. सो ये इंसेक्ट्स होता है जो एक झुंड में आते हैं और पूरा जो क्रॉप्स होता है उसको एक ही पल में पूरा निगल जाता है. तो यहाँ पे बहुत सैड होके लेंचो बता रहा है अपने बेटे को कि देखो, अगर ये लोकस्ट भी आता ना तो कुछ तो बचा रहता, लेकिन ये जो हेल स्टोन्स हुआ है इसमें कुछ भी नहीं बचा. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. मतलब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई कॉर्न नहीं बचा. That night was a sorrowful one. Definitely उस रात बहुत ही बुरा था उस फैमिली के लिए. लेंचो का पूरा फैमिली sorrowful था, दुखी था. all our work for nothing. That means all our endeavor went for nothing. जो भी हम काम किए वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी नहीं बचा. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. और कोई भी नहीं है जो हमारा मदद कर सके. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और इस साल हमें पूरा भूखा ही रहना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो कॉर्न था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है. बट इन द हार्ट्स of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन एक देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जो मेन थीम है इस स्टोरी का, फेथ इन गॉड. क्या बोला जा रहा है देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस. वो जो लोनली हाउस, सॉलिटरी मीन्स लोनली, वो जो लोनली हाउस है उस वैली में और उसका जो मेंबर्स है उनके सभी के अंदर, सभी के हार्ट में एक होप है, एक सिंगल होप है. वो क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड. ओके, सो दे हैव एक्सट्रीम फेथ इन गॉड. दे बिलीव इन गॉड. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. So this is the consolation. Don't be so upset. ये बोला जा रहा है कि इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. Even though this seems like a total loss, हालांकि ये दिख रहा है कि हाँ ये टोटल लॉस है, फिर भी अपसेट होने की कोई वजह नहीं है. Remember, no one dies of hunger. कोई भूखा नहीं मरता. That's what they say, no one dies of hunger. हाँ, ऐसा ही बोला जाता है. That's what they say. All through the night, Lencho thought only of his one hope. एक ही जो उनका आशा था, hope था, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. जैसा कि हम सब जानते हैं, मानते हैं कि God उन्हें सब पता है. God is omniscient, whose eyes, as he had been instructed,
जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख सकता है, इसलिए गॉड को ओमनीसाइंट बोला जाता है, गॉड को ऑलमाइटी बोला जाता है। ऑलमाइटी के अंदर तीन चीज आती है, एक ओमनीसाइंट, एक ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड omnipotent, God is all powerful. So here is omnipresent, he sees everything, even what is deep in one's conscience. Conscience means an inner sense of right and wrong. मतलब किसके अंदर अगर कुछ भी चल रहा हो, गलत हो या सही हो, जो भी हो, वो गॉड को मालूम है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. So यहाँ पे और एक मतलब जो मेन थीम है वो भी वही आ जाता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब वो एकदम से काम का आदमी है, बहुत ही मेहनती है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेत में एकदम से एनिमल के तरह काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे पढ़ाई लिखाई आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट ए लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. So अगली जो संडे थी, वो डे ब्रेक में, मतलब जो उसको थोड़ा छुट्टी मिला, एक पॉज लिया उसने। सो और वो शुरू हो गया एक लेटर लिखने में, एक खत लिखना था, which he himself would carry, और उस खत को वो खुद ही ले जाने वाला था, to town and place in the mail, और उसको मेल बॉक्स में वो ड्रॉप करने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। सो ये क्या था? एक लेटर था जो वो गॉड को लिखने वाला था। सो ही रोट, गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। सो उसने एक खत लिख भी डाला। उसने लिखा कि हे भगवान, अगर आप इस साल हमें ना हेल्प किया तो हम भूखे मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again. मुझे 100 pesos की ज़रूरत है क्योंकि मैं दोबारा से मेरा खेत में जो खेती बाड़ी वो करना चाहता हूँ। And to live until the crop comes. और मुझे ये पेसोस चाहिए क्योंकि जब तक ना मेरा खेत जो मैं उसमें उगाना चाहता हूँ, जब तक ना हो पाए, तब तक के लिए आप मुझे ये हेल्प कर दीजिए। बिकॉज द हेल्थ स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, मतलब वो पूरा स्टोरी गॉड को उस खत में लिखने वाला था। ऐसा हुआ है कि हेल्थ स्टॉर्म की वजह से मेरा पूरा जो खेती बाड़ी है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऐसा वो लिख रहा था। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, जैसा कि हमें मालूम है कि एड्रेस में लिखा जाता है, मतलब जिसको भेजने वाला है हम उसका एड्रेस लिखा जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे टू गॉड लिख दिया। गॉड का और क्या एड्रेस होगा? टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। ऐसा ही करके उन्होंने एनवेलप के अंदर इसको डाला और ट्रबल होके, मतलब उसके अंदर कुछ पजल चल रहा था, वो क्या करे ना करे। ही वेंट टू टाउन। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. जब वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, उन्होंने एक स्टाम्प लगाया लेटर के ऊपर और मेल बॉक्स के अंदर उसको डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. सो एक पोस्ट ऑफिस का एक जो एम्प्लॉई था, उन्होंने क्या किया, वो एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में कुछ हेल्प भी करता था वो। तो वो सीधा उसके बॉस के पास गया, हंसते हंसते उसके बॉस के पास गया और उसको दिखाया कि देखो, एक बंदा ऐसा भी है जिसने लेटर लिखा है, किसको? ना गॉड को। Never in his career as a postman had he known that address. और उसे ये भी पता नहीं था, उसके पूरे जो करियर है पोस्टमैन का, तो उसे कभी ऐसा खत नहीं मिला जिसमें कि एड्रेस लिखा गया है टू गॉड।
मतलब हम जैसे कि लिखते हैं, अगर कोई एड्रेस लिखना हो तो पहले तो उस बंदे को जिसको हम भेजने वाले हैं लेटर, उसका नाम लिखा जाता है, वह कहाँ पे रहता है, उस गली का नाम, मोहल्ले का नाम, या फिर अगर कोई हाउस नंबर हो, प्लॉट नंबर हो, ऐसा कुछ हो तो उसको लिखा जाता है। फिर पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो जिला वगैरह वगैरह लिखा जाता है। लेकिन इसमें वो बंदा सिर्फ लिखा था क्या, टू गॉड। ये जो पहले हमने इसको देखा था, ही रोड टू गॉड। सो ये जो पोस्टमैन था, उसके पूरे करियर में वो ऐसा पता ना कभी पहले सुना था ना कभी देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल। एमिएबल का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, फ्रेंडली, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। सो वो काफ़ी अच्छे भला आदमी था। एमिएबल फेलो, एन एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर भी उसको देख के हंसने लगा पहले, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। लेकिन कुछ देर हंसने के बाद वो भी सीरियस हो चुका था। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। फिर उसको उन्होंने क्या किया, वो लेटर को ऐसे रख दिया अपने टेबल के ऊपर, अपने डेस्क के ऊपर, और फिर बोल पड़े, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। सो जो बॉस था वो काफ़ी सीरियस हो चुका था और उन्होंने बोला कि हाँ भाई, इसके अंदर तो बहुत फेथ है गॉड के बारे में, ये गॉड को बहुत ज़्यादा फेथ करता है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। मतलब मुझे ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि मुझ में भी ऐसा फेथ रहता किसी के ऊपर, पर्टिकुलरली गॉड के ऊपर ही, तो अच्छा रहता। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड। किसके लिए? सो ही स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। जैसा कि उन्होंने बोला कि हाँ, गॉड को खत लिख रहा हूँ, इसका मतलब गॉड के साथ मेरा कोई रिलेशन है, कॉरस्पॉन्डेंस है। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन है। जैसा कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है लेटर, तो ऐसा एक कॉरस्पॉन्डेंस अगर मेरा भी होता तो अच्छा रहता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। तो पोस्ट मास्टर, एक जैसा कि हमने देखा कि वो एक अच्छा आदमी था, एक भला आदमी था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हाँ, इसका जो फेथ है गॉड के ऊपर, ये मुझे रखना चाहिए, मतलब अगर कुछ किया जाए तो अच्छा रहता। तो उन्होंने एक आइडिया सोचा, आंसर द लेटर। ये जो कोलोन है, जो आप देख रहे हैं, दो डॉट है, इसका मतलब जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसका एक एक्सप्लेनेशन है। तो उसका आइडिया क्या था? आइडिया था आंसर द लेटर। मतलब उन्होंने जो खत लिखा है गॉड को, तो गॉड उसको आंसर दे रहा है, ऐसा कुछ वो करना चाहता था। मतलब गॉड तो आंसर नहीं लिखने वाला था, तो वो पोस्ट मास्टर खुद ही गॉड के ओर से इस आदमी को, मतलब लेंचो को, जो फार्मर था, उसको आंसर देने वाला था। ऐसा उन्होंने एक आइडिया लगाया। बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. मगर जब उन्होंने उस लेटर को खोला, उस खत को ओपन किया, क्योंकि वो इन्वेलप के अंदर था, it was evident, it was clear, it was evident means it was clear that to answer it he needed something more than goodwill. We know that the person was a very good one, the postmaster एक भला आदमी था, उसका गुडविल था, लेकिन इसको आंसर देने के लिए सिर्फ गुडविल ही नहीं चाहिए था, और भी कुछ चाहिए था। वो क्या था? मनी। जैसा कि हम जानते हैं, वो पेसोस डिमांड किया था। लेंचो ने बोला था कि गॉड, मुझे पेसो चाहिए। ओके, सो गुडविल, इंक एंड पेपर, मतलब इंक और पेपर में सिर्फ लिखा जाए उसका आंसर, तो ये नहीं चलेगा। गुडविल के साथ अगर इंक और पेपर में लिखा जाए तो ऐसा नहीं चलेगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो डिटरमाइंड हो चुका था। रेजोल्यूशन मीन्स ही वॉज डिटरमाइंड दैट आई विल हेल्प, आई विल आंसर दिस। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। वो क्या क्या, उनके ऑफिस में सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनको वो बोला कि आप क्या हेल्प कर सकते हो। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी।
और उसका जो खुद का जो सैलरी था उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने दे भी दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उन्होंने मना भी लिया, जो उनके काफ़ी सारे दोस्त थे, सेवरल फ्रेंड्स थे, उनको वो मना भी लिया कि हाँ भाई आओ और चैरिटी करो, कुछ दान वगैरह करो, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, जो कि लेंचो का डिमांड था कि गॉड मुझे 100 पेसोस की सख्त ज़रूरत है. तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, एक मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था उसके लिए. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ. मतलब 100 पेसोस तो जुगाड़ नहीं हो पाया, वो उन्होंने 50 पेसोस के ऊपर कुछ और 50, 52, 56 ऐसा ही कुछ, अभी तो डिटेल में दिया गया नहीं है, लेकिन 50 से ऊपर कुछ पेसोस उन्होंने देने का सोचा. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. So उन्होंने अपना आइडिया लगाया, दिमाग लगाया और क्या किया, सारे जो मनी जो उन्होंने इकट्ठा किया था, जो पेसोस, उसको एक इन्वेलप में डाला. लेंचो का एड्रेस तो उन्हें मालूम ही था, क्योंकि लेंचो ने एड्रेस, जब गॉड को एड्रेस लिखा था तो लेंचो ने फ्रॉम ऐसा करके कुछ लिखा होगा शायद, फ्रॉम लेंचो, तो उसका एड्रेस पोस्टमास्टर के पास था और पोस्टमास्टर ने लेंचो को रिटर्न खत लिखा विथ ए लेटर. एक लेटर भी उसके साथ, मतलब इन्वेलप में सिर्फ पैसों नहीं दिए, एक लेटर भी उसके साथ लिखा, कंटेनिंग ए सिंगल वर्ड. और लेटर में कुछ लिखा गया नहीं था, सिर्फ एक वर्ड लिखा गया था, एज ए सिग्नेचर, जैसा कि गॉड साइन कर रहा हो, सिग्नेचर कर रहा हो, और लिखा गया था सिर्फ गॉड. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम. उसके अगले संडे जब लेंचो आया, कुछ अर्लियर, ए बिट अर्लियर, मतलब वक्त से कुछ पहले ही आ गया था, देन यूजुअल, जैसा कि वो आता था उससे पहले ही आ गया, टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, मतलब वो खोज कर रहा था कि हाँ या फिर कोई लेटर उसके नाम पे आया है या नहीं. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इट वॉज द पोस्टमास्टर, सॉरी द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो जो पोस्टमैन जो था वो खुद ही उस लेटर को उसके हाथ में दे दिया. वो हैंडेड द लेटर टू हिम, लेंचो को हाथ में दिया. वाइल द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर जो बॉस था जिन्होंने ये आइडिया लगाया, एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ ए मैन, जो देख रहा था, हाँ जो एक मैन है वो कंटेंट हो चुका है शायद, कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड, क्योंकि गॉड ने उसको पेसोस भेजा है, जैसा कि उसका फेथ था गॉड के ऊपर, गॉड उसको हेल्प करेगा, तो ऐसा हुआ है, तो वो कंटेंट होगा, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड. हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जो मैन है मतलब जो बॉस पोस्ट मास्टर है, उन्होंने एक अच्छा काम किया है, ए गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहा था उसको. यहाँ पे कॉन्टेंटमेंट का मीनिंग भी दिया हुआ है, देखिए, सेटिस्फेक्शन. ओके. लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. ओके, तो अभी देखो कि लेंचो का हमारा जो थीम है इस पूरा चैप्टर का, फर्स्टली फेथ इन गॉड. सो लेंचो का इतना फेथ है गॉड के ऊपर, वो एकदम से भी हल्का सा भी वो सरप्राइज नहीं हुआ मानी को देख के, क्योंकि उसको ऐसा स्ट्रांग बिलीव था, हाँ मैंने गॉड को खत लिखा है तो ज़रूर गॉड मुझे हेल्प करेगा. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच वाज हिज फेथ इन गॉड. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन पेसोस देख के वो गुस्सा हो गया. When he counted the money, क्योंकि उसने डिमांड किया था कितने, 100 पेसोस का, लेकिन ऐसा तो नहीं दिया गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. क्यों गुस्सा हो गया वो, क्योंकि वो जानता था कि गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकता.
nor could he have denied Lencho what he had requested. गॉड ऐसा भी नहीं कर सकता है कि हाँ लेंचो ने रिक्वेस्ट किया है और मैं उसका नहीं देने वाला हूँ. सो गॉड डिनाई भी नहीं कर सकता था. तो ऐसा क्यों हुआ, ये सोचकर वो एंग्री हो चुका था कि हाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. सो गुस्सा होकर लेंचो ने जो काउंटर था, जो विंडो था पोस्ट ऑफिस का, वहाँ पे जाके पेपर और इंक मंगवाया कि मुझे पेपर और इंक दे दीजिए, मुझे खत लिखना है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. वो एक फार्मर था लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था, हमने पहले ही देखा था. तो वो क्या किया, उसको गुस्सा आ गया और वो खत लिखने लगा. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब एकदम से आईब्रो को रिंकल करके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू नीड ब्रोज, मतलब बहुत गुस्सा था उसको. caused by the effort he had to make to express his ideas. और वो ये भी सोच रहा था कि हाँ मैं क्या लिखूँ गॉड को, कि ऐसा हुआ है तो मतलब एक्सप्रेस कैसे किया जाए, ये सोचकर भी उसको ऐसा रिंकलिंग आ रहा था. When he finished, जब वो खत लिखना फिनिश किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope. So जब उसका खत लिखना कंप्लीट हो गया, वो क्या किया, वो विंडो के पास गया और एक स्टैम्प लेके उसको लिक किया, अपने टंग से लिप किया और उसको क्या किया, एफिक्स कर दिया एनवेलप के ऊपर. विथ ए ब्लो ऑन हिज फिस्ट, और फिर उसके ऊपर ऐसे एक ब्लो किया, मतलब लगा दिया और इसके ब्लो कर दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्टमास्टर वहीं पे था जब एज सुन एज द लेटर was on the letter box, the postmaster went there and opened. It said means the letter reads like that: God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. मैंने आपसे जो भी रुपया मांगा था, जो 100 पेसोस मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, 100 पेसोस मुझे नहीं मिला, ओनली 70 पेसोस मुझे मिला. तो यहाँ पे जो पहले बताया गया था कि लिटिल मोर देन हाफ, उसका मतलब अभी हमें क्लियर हुआ कि 70 पेसोस भेजा गया था. सेंड मी द रेस्ट, मुझे और 30 पेसोस भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे ये बहुत अर्जेंसी है, मुझे ये चाहिए. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. देखिए यहाँ पे जो कहानी का जो मैंने थीम बताया था, एप्रिसिएशन लास्ट में जो होता है, ये एप्रिसिएट नहीं किया गया. मतलब ये आप बोल सकते हो कि लेंचो का इनोसेंस है या फिर उसका ग्रीड है, जो भी है, लेकिन लेंचो यहाँ पे एप्रिसिएट नहीं कर पा रहा है और वो ऐसा सोच रहा है कि शायद वो चीटेड है. क्योंकि देखिए यहाँ पे, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि वो सोच रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो सारे एम्प्लॉइज है वो ए बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब वो चीटर है, वो सारे चीटर है और शायद उन्होंने ही ये 30 पेसोस जो है वो अपने पास रख लिए होंगे और बाकी जो 70 पेसोस है वो मुझे भेजा होगा. लेंचो. सो क्या हुआ, उसने फिर से एक और खत लिखा कंप्लेन करते हुए कि जो पोस्ट ऑफिस के जो सारे बंदे हैं ये ठीक नहीं है, अच्छे लोग नहीं है और शायद इन्होंने ही आपके द्वारा भेजे गए जो 100 पेसोस है उनमें से 30 पेसोस अपने पास रख लिए और मुझे बाकी के 70 पेसोस दिए. तो अगली बार जब आप मुझे 30 पेसोस भेजना तो इनके जरिए मत भेजना, कुछ और उपाय करना और मुझे बाकी के जो 30 पेसोस है वो भेज देना. तो ये था लेंचो का स्टोरी. मतलब लास्ट में जैसा कि मैंने बताया था आपको, थीम के अंदर जो थीम है इसमें 3 चीज़ है. एक पहले जो बताया था कि एक फेथ है लेंचो का फेथ है गॉड के ऊपर, ये तो दिख रहा था हमें.
लेकिन उसका ग्रीड भी है। ग्रीड क्यों? क्योंकि ये मतलब वो 70 पैसों से भी खुश नहीं है। आप इसको बोल सकते हो कि हाँ, ये एक प्रकार का एक इनोसेंस भी है शायद। लेकिन थर्डली, जैसा मैंने बताया था आपको, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है जो जो चैरिटी होता है, चैरिटी माइट गो अननोटिस्ड समटाइम्स। समटाइम्स जो चैरिटी दिया गया है वो शायद आपका अननोटिस्ड भी हो सकता है। दैट मीन्स वन माइट नॉट रिसीव एनी रिकॉग्निशन फॉर वंस काइंडनेस। यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। जो जो पोस्ट ऑफिस के सारे ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपना सैलरी देकर या फिर दोस्तों से मांग कर जो भी 70 पेसोस इकट्ठा किया था, उसका वैल्यू लेंचो नहीं समझ पाया। क्योंकि लेंचो को ऐसा हो रहा था मन में कि हाँ, जो 30 पेसोस है ये शायद पोस्ट ऑफिस के सारे ऑफिसर्स मिलके बांट अपने आप ले लिए होंगे और मुझे 70 पेसोस ही दिया गया है। तो ये था स्टोरी स्टूडेंट्स। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ मतलब इसके अंदर और भी कुछ है, जैसा कि वर्ड मीनिंग्स वगैरह, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं हेल्प करूँगा आपको इसमें से। ओके, सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।